الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ تھا کہ عموماً اگر ہم میں بھی کوئی دو چار لوگ جانتے پہچانتے ہوں اور کوئی کسی بات پر تعریف کر دے تو اپنا جو حال ہوتا ہے، مطلب ہم تو اپنے پھولے نہیں سماتے۔ یہ وصف کیسے پیدا ہو اپنے اندر کہ ایک تو کوئی تعریف کرے تو ہم پھولے بھی نہ سمائیں؟ اب پھولنے پھٹنے کا سوال یہ ہے کہ اب جس کی لوگ تعریف پر تعریف کیے جاتے ہوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سیر ہو جائے تعریف سن سن کر، اور جس کی کبھی کسی نے تعریف نہیں کی اور تعریف کر ڈالے پھر تو وہ تو قابو میں نہ آئے نا۔ تو اس میں اپنی تعریف پر نہ پھولنا یا پھولنا تو اس کے بھی اسباب ہیں۔ میرے لیے تو یہی ہے کہ میں چونکہ بہت تعریفیں میری لوگ کرتے ہیں، عادی ہو گیا ہوں، یعنی میرے اندر کوئی ایسا وہ روحانی وصف نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف سے پھولتا نہیں، بہت پھول چکا ہوں۔ اب بھی کچھ نہ کچھ پھلا ہوا آتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے تو اللہ پھٹنے سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بٹ بپا ہمارے لیے جیسے من 3.5 ہمیں لوگ جانتا کون ہے، ہمیں اگر ایسا کوئی سامنے کوئی اس طرح سے سامنا ہو، واسطہ ہو، تو اپنے آپ کو کس طرح ایک عام اسلامی بھائی کس طرح قابو میں رکھے؟ حسن زن کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسن زن سے ہمیں بہتر کر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب ہے ایک قول کہ جب آپ کی کوئی تعریف کرتا تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حسن زن سے بھی اچھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے، وہ تعریف پر اپنے اوپر غور کر کے جو تعریف کر رہی ہے واقعی میری تعریف بنتی بھی ہے یا اس کو خوش فہمی ہوئی ہے۔ عام طور پہ خوش فہمیاں ہوتی ہیں میرے بارے میں، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں یہ بیچارے ان کی خوش فہمی ہوتی ہے، حسن زن ہوتا ہے۔ من آنم کے من دانم، یہ فارسی مقولہ ہے، میں جانتا ہوں جیسا ہوں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ذرا کہ اپنا احساس تو ہوتا ہے کہ ہم خود کیسے ہیں، ہمارا اپنا اندرونی کیفیت، باطینی کیفیات کیا کیا ہے۔ اب کوئی تعریف کرے ہم پھولتے چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے باعث ہلاکت ہو سکتا ہے۔ محمد قاسم اتاری، درجہ دورہ حدیث شریف، مرکزی جامعۃ المدینہ۔ تو دورہ حدیث شریف والے کتنے ہیں یہاں؟ ماشاء اللہ۔ مدنی مذاکرے میں کتنے ہوتے ہیں دورہ حدیث شریف والے؟ یوں آج کارکردگی تو ملی تھی لیکن کہیں غلطی تو نہیں ہوئی۔ 188 ہیں دورہ حدیث شریف میں، اور اس میں سے آنے والوں کی تعداد بھی اچھی لکھی تھی، 103۔ تو یوں تعداد تو اچھی، شاید اوپر کم آ رہی، اوپر کی تعداد کچھ کم ہی ہوگی آج کل کے مدنی مذاکروں میں۔ بعض گوادر بھی جائیں گے مدنی کاموں کے لیے، جو باہر جائیں گے مدنی کام کرنے کے لیے ان کو تو فرسٹ تو وہی ہے، ان کو جانے دیا جائے جی۔ جو اب نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں تو یار یہاں پڑے رہو، تو کچھ یہاں بھی تو، کیونکہ جو دور جائیں گے نا وہ کام زیادہ کریں گے، یہاں والے کام نہیں کریں گے اتنا۔ گھر میں کام نہیں ہوتا ہے، یہ فرینڈ سرکل ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کریں گے، اپنے ترغیب دے سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ موقع آئی ہے، ایک دور تھا ہمارا کہ ہم یار بندہ ڈھونڈتے تھے، میں صحیح بولتا ہوں، یعنی میں ایسا حریص تھا کہ بس کوئی نیا اسلام بھائی ملے
इस्लामी भाई तो इस्तिलाह भी नहीं जी, कोई नया मिले मैं इस पर इनफरादी कोशिश करूँ। मैं एक एक पर बात होगा इतनी देर तक इनफरादी कोशिश करता था, यानी हिर्स थी। मैं इसको समझाऊँ, नमाज का बोलूँ, इसको इश्क रसूल की बात करूँ, इसको अपना जो भी अंदाज था उस वक्त का तो मैं करूँ, इसको इज्तिमा की दावत दूँ, इसको ले आऊँ। अब यार आप लोग यकीन माने, ये पकाने वालों ने पकाया है और अब लाट के लाट आपके पास आ रहे हैं, और यार आप लोग इनसे फायदा नहीं उठाते यार, लाट के लाट आ रहे हैं। इंशाअल्लाह। यकीन माने कि इतना इसमें आप कर सकते हैं मदनी काम कि शैतान देखता रह जाए, करने वाले बने यार इंशाअल्लाह। बाबा जानी मेरी तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से और सब घर वालों की तरफ से भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी सवाल ये है कि सपारे जो शहीद होते हैं उन्हें तो ठंडा कर देते हैं, और जो कुरान पाक है उन्हें क्या करना चाहिए जी? जो कुरान पाक शहीद हो जाते हैं उनका क्या, कैसे उसे करना चाहिए? दफनाना चाहिए, ठंडा करना चाहिए? हाँ, उनको भी जहर दफना सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। जब सिपारे हैं वो भी दफनाते हैं, और मुक़द्दस औराक भी दफनाए जाते हैं। इस तरह कुरान करीम जो अब जिसकी तिलावत नहीं की जा सकती, शहीद हो गया, वो भी दफनाया जाए या ठंडा किया जाए। ठंडा कर दी? हाँ, ठंडा करने में कोई हरज नहीं है। ऐसी जगह ठंडा ना किया जाए कि बहता हुआ किनारे पर तशरीफ ले आए, बल्कि बोरी में डालकर उसमें चीरे लगाकर, पत्थर हो, वजन हो, ते में बैठ जाए गहरे पानी के अंदर। पापा जी एक और सवाल है मेरा गला मंडी में काम है खाद का बाबा जानी, ये 1300 रुपये वाली उधार दे सकते हैं बाबा जी? 1500 में, 1600 में? ये कलम है, नकद दो तो 1 रुपये का, हाँ जी। और अगर साल भर के बाद अगर पैसे देते हो उधार तो 2 रुपये का, यूं ना? हाँ जी, 6 महीनों की उधार। 6 माह या 1 साल, मतलब नकद सस्ता बेचना हाँ जी। और उधार महंगा बेचना जायज है। जबकि ये ना हो कि अब इतने दिन में नहीं दोगे तो फिर इस पर इतनी, ये जायज नहीं है। एक रेट मुक जाए, मतलब ये तय हो जाए कि ये तय हो जाए तो 100 रुपये का है, नकद लो तो, उधार लो तो 6 महीने के बाद दोगे तो मैं 125 रुपये लूंगा, 125 रुपये का ही है, तो ये कर सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी के बारे में कोई वाक़या सुना दें, यानी कि उनकी सीरत के बारे में कोई पहलू सुना दें। ये मकतबुल मदीना ने फैज़ान सुल्तान बाहू नामी रिसाला शाया किया है। उसके पेज नंबर 21 से लेकर 22 पर एक करामत पेश करता हूँ। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने एक वज़ीर के हाथ हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में अशरफियों की 2 थैलियाँ भेजी। उस वक्त आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कुएं के पास बैठे खेतों को पानी दे रहे थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दोनों थैलियाँ कुएं में फेंक दी। वज़ीर को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश ये अशरफियाँ मुझे मिल जाती। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके दिल की बात जान ली और जब कुएं की तरफ नज़र फरमाई तो उस कुएं से पानी के बजाय अशरफियाँ निकलने लगी। अशरफियाँ सोने के सिक्के होते हैं, पहले चलते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत देखकर वज़ीर आपके कदमों में गिर गया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बार फिर उस पर नज़र फरमाकर इश्क़ हकीकी का जाम पिलाया और वो दोनों अशरफियों से भरी थैलियाँ उसके हवाले कर दी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बाबा जान मोहम्मद तैयब अत्तारी 12 माह के मदनी काफ़िले में हूँ। प्यारे बाबा जान, पिछले दिनों आपसे एक घराना जो गैर मुस्लिम था उसके बारे में ज़िक्र किया था
اور دعا کے لیے بھی عرض کیا تھا آپ سے، تو الحمدللہ وہ گھرانہ مسلمان ہو چکا ہے۔ ماشاء اللہ۔ کتنے افراد ہیں؟ 7 افراد۔ الحمدللہ۔ نور کی برسات۔ اب دیکھا نا، یہ سارے میرے کھاتے میں آ جاتے ہیں، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں ان گھرانے کو جانتا ہوں۔ دعا تو کی تھی نا بابا؟ بابا جب ان یہ بھی سے یاد نہیں ہے، دعا تو دی تھی آپ، میں تھا اس وقت کی ہوگی یہاں بس وہ۔ تو بابا جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سب کا، آپ 7 افراد ہیں، آپ کا ایک دم سے ذہن کس طرح بن گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے باپا کے بیانات سن کے اور نگران شورا کے بیانات سن کے ہمارا یہ ذہن بنا اور ہم سب گھر والے مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ۔ اور باپا اللہ ان انہوں کو نے- بھی استقامت دے، ہمیں بھی استقامت دے آمین۔ ایمان پر۔ بابا جان ایک سوال کرنا تھا۔ بابا جان سوال یہ ہے کہ ہم جب محفل میں جاتے ہیں تو پیسوں کے حوالے سے جو ہے نا بچنا بہت دشوار ہو گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہمارا تو ذہن آپ نے بنایا اور آپ نے بھی کہا تھا یہ کہ میرا یہ ظن غالب ہے کہ پیسے ہم نہیں لیتے۔ تو باپا جان بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جب ہم محفل میں جاتے ہیں، ہم سے پہلے جو نعت خوان آ کے بیٹھا، نعتیں پڑھنا شروع ہوا اور ان پہ چھما چھم برسات ہونے لگی پیسوں کی، انہوں نے تو منع نہیں کیا، وہ نعت پڑھ کے فارغ ہو گئے، پیسے لے لیے۔ اور جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو جب ہم پہ اس طرح کوئی پھینکتا ہے تو ہم اسی ٹائم منع کرتے ہیں۔ تو ہمارا اس طرح منع کرنا، اگر ہم منع کرتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹتا ہے، اور منع نہیں کرتے بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حصہ ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر منع کرتے ہیں تو کیا ہم اس گناہ سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں تو پیسے اس طرح ڈالتے ہیں، دیتے ہیں، تو اس کو گناہ کہا کس نے؟ جب اجرت کی صورت نہیں ہے، اور ویسے اگر کوئی لاکھ روپے دے دے اٹھا کر تو یہ گناہ تو نہیں ہے۔ نہیں وہ جو اوپر پھینکتے ہیں اس طرح، وہ لینا جائز ہے؟ ہے تو جائز، جبکہ نہ طے ہے نہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اجرت ملے گی۔ اب ویسے لوگ خوشی سے اگر دے رہے ہیں تو لے لینے میں تو حرج نہیں ہے۔ نچھاور بھی جو ہوا اور آپ نے منع کر دیا مائک پر کہ مجھ پر پیسے ڈالنا نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، چاہے کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، ہم کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے، یہ بھی پڑھیں گے تو اس پر بھی زر لٹائیں گے۔ اگر زر سونے کو بولتے ہیں تو پیسے لٹائیں گے، ان کی عادت ہوتی ہے۔ اور پیسوں کا منع کریں تو ان کو برا نہیں لگتا ہوگا، پیسے تو یہ برا لگنا مشکل ہے۔ اب نال یہ اعلان کرنا کہ مجھے نہیں دینا، شیطان پھر دوسری طرف سے وار تو کرے گا کہ لوگ تعریف کریں گے بڑا بے لوس آدمی ہے، بڑا عاشق ہے، وہی تو بولتا پیسے نہیں چاہیے ہم کو۔ یہ اس سے بھی پھر اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، واہ سے حب جا کا حملہ تو ہوگا، لیکن لینے میں ہرس بڑھتی ہے، لیتے رہیں تو ہرس بڑھے گی۔ یار یہ نعت خوان بننے کا شوق بہت ایسا ہے بھائیوں کو۔ اب ایک نے بیچارے نے پرچی تھی، قابل رحم ہوتے ہیں بیچارے، کہ مجھے فلاں نعت خوان جیسی آواز چاہیے۔ اور یار یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے یار، کوئی بولے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا شہدا بننا ہے، یہ کیسے بنتا ہے؟ ایسا کچھ ہو جاؤں میں، غوث پاک کا سچا غلام بنا دو مجھے، کوئی ایسی صورت بنا دو، ایسی دعا کر دو۔ اب فلاں نعت خوان، فلاں گلا میرا ایسا ہو جائے، یہ ایسا خطرہ مانگ رہے اپنے کے لیے۔ جن کی آواز اچھی ہوتی ہے نا، ان کا بچنا اللہ جس کو بچائے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قدموں کا صدقہ کوئی مانگے، اب یہ متعین کر کے اس شخص جیسا ہو جاؤں تو وہ بڑا رسک ہوتا ہے اس میں۔ مانگنا بھی نہیں آتا، سچی بات یہ۔ اچھی آواز ہے تو نعمت، لیکن اس میں زحمت بڑی ہے بہت۔ مطلب آپ جو جن کی آواز اچھی نہیں ہوتی نا، ان کو یہ نعت پڑھتے بھی ہیں بیچارے، ان کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم پر کوئی ناٹے نوٹتے بھی لٹائے گا، تو ان کو ہرس بھی نہیں ہوتی ہوگی،
हवस भी नहीं पैदा होती हो, कुछ पता भी नहीं चलता होगा। लेकिन जिनकी आवाज़ अच्छी होती होगी ना, वो बेचारे फंसते हैं, इनकी आजमाइश होती है। वे जहाँ कम मिलेंगे वहाँ रंजीदा होंगे, ज़्यादा मिलेंगे खुशी बढ़ेगी, दोबारा वहाँ जाने को जी चाहेगा, और जहाँ लोग नहीं देंगे तो वहाँ जाने को दिल ही नहीं करेगा, गला बैठ जाएगा, आवाज़ धीमी हो जाएगी, अगर पढ़ा भी तो बेदिली से, और अगर नोटें आई तो जूं जूं नोटों की बरसात बढ़ेगी और आवाज़ भी बुलंद से बुलंदतर होती चली जाएगी। क्या किया जाए? बाबा इनकी हौसला अफजाई इस मानों में तो है ना कि ये कम से कम सवाल तो जहन में आता है, हुसासियत तो है, पूछते तो हैं माशाअल्लाह आपकी बारगाह में। माशाअल्लाह एक जहन बना ले बंदा यार कि मैं नहीं लेना, खलास मैं नहीं लेता, कुछ भी हो जाए मुझे मत दो। मगर ये बड़े हौसले की बात है, बहुत मुश्किल है। वही अगर नात पढ़ते पढ़ते मना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब नात पढ़ते पढ़ते नोटों को देख सकते हैं तो मना भी कर सकते हैं, बस देखेंगे तो ही मना करेंगे ना। मैंने बहुत निकाह पढ़ाए हैं, आप बताइए कोई मुफ्त निकाह पढ़ाता है? बड़े से बड़ा आपका मतलब है कि मक्की मदनी इस्लामी भाई हो, कोई भी मुफ्त शादी नहीं पढ़ाता होगा। मुझे कभी भी किसी ने पैसे नहीं दिए निकाह पढ़ाने के, और मैंने कितने निकाह पढ़ाए मुझे याद नहीं है, मैं कहाँ कहाँ जाके निकाह पढ़ाता था। तो ये जहन बना हुआ था कि नहीं लेता है, मुझे नहीं देते थे। जब आज़ाद था, ये हिफाजती उमूर के मसाइल नहीं थे, तो शादी किसी की भी होगी 3 काम मैंने करने होते थे, निकाह पढ़ाना, एक महफिल नात इज्तिमा ज़िक्र नात उसमें हाजिरी देना, और वलीमे में शिरकत करना। ये 3 मेरे को मतलब ये इसका मुतालबा होता था इस्लामी भाइयों का, और मैं जाता था कभी कोरंगी कभी औरंगी, यानी मतलब कभी सिरे पर, कभी अपने पल्ले से, शायद टैक्सी में भी गया हूँ मैं अपने पल्ले से। ये भी नहीं बोलते थे किराया लोगे, ये समझते थे इसके पास को पैसा होगा दरख्त देना, यूँ तोड़ के ले लेता होगा, टिकट दे देता होगा। तो जो नहीं लेता तो उसको यूं भी करते हैं ये लोग, भले करे कोई बात नहीं, दीन का काम तो हो यार। पैसे ले लेकर काम नहीं होगा, पैसे लेंगे ना बोले यार ये भी ऐसा ही है यार, खाली ये बोलते हैं कि हम लोग पैसे नहीं लेते, और ऐसा जज़ाकल्लाह के कर सरका लेते हैं जेब में। हमारे मारल नातख्वान ये करते हैं, पैसे तो खींच लेते हैं। अब सारे खींचते हैं ये नहीं पता, लेकिन ये सुना है कि खींच लेते हैं, काबू नहीं आते। तो हिर्स तो सबके साथ पेट लगा हुआ है, नौकरियां भी करते होंगे, काम धंधा भी करते होंगे, इधर से भी खींचना होता है, उधर से भी खींचना होता है। कोई खींचता है, कोई नहीं खींचता, अल्लाह बेहतर जाने। मुझे ये पता नहीं है कि कौन कौन लेता है, कौन कौन नहीं लेता है। अपना जहन है कि नहीं लेना चाहिए। जिसका अमल हो बेगरज, उसको उसकी जजा कुछ और है। दुआ कर दीजिए अल्लाह इस्तिकामत के साथ। और ये ना, ये आपकी इज्जत, ये दौलत की रेल पैल, ये सही बोलता हूँ, ये इसकी करते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते। आपकी आवाज़ की ये इज्जत कर रहे हैं। जिस दिन आपका गला बैठ गया, ये आपको पानी भी नहीं पिलाएंगे, बुलाने वाले घास नहीं डालेंगे आपको। तो यूं भी बंदा डरे, ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह का करम है कि मुझे सना खानी की नेमत नसीब हो रही है, ये कहीं छिन न जाए मुझसे। क्या इसके पैसे लेने थे यार? दरबार रिसाले से वो मिलता है मुखलिसिन को, के है ना, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नहीं। बच्चा हो या बड़ा यार, पैसे दिखा दिखा कर जहन खराब कर देते हैं लोग। मैं तो कभी कभी यूं भी बोलता था यार, मेरी आदतें खराब नहीं करो यार, मुझे नजराने मत दिखाओ यार, पैसे नहीं दिखाओ मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अपना पेट भरा हुआ है, खाकर धोने वाले बचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भूखे उठते हैं, भूखे सोते नहीं है। अल्लाह की रहमत है, उसका करम, बहुत दिया उसने। मैं बड़ा अमीरो कबीर हूँ, दरे मुस्तफा का फकीर हूँ, मेरा रिफ़अतों पे
नसीब है। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है आपकी बारगाह में कि जब हम एकेडमीज़ में पढ़ाते हैं या स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो फीस लेट हो जाने पर कुछ फ़ाइन कलेक्ट किया जाता है, या स्टूडेंट छुट्टी कर लेता है तो कोई फ़ाइन 10 रुपये या 15 रुपये फ़ाइन लिया जाता है। तो ये रहनुमाई फरमा दीजिए, क्या ये फ़ाइन लेना दुरुस्त है, इसकी क्या अहमियत है? माली जुर्माना मनसूख है, जायज़ नहीं है। जज़ाकल्लाह खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं जब कुरान पाक पढ़ता हूँ, पहले मैं 4 दफ़ा कुरान पाक पढ़ा हुआ, अभी जब मैं पढ़ता हूँ तो पीछे से भूल जाता हूँ, और आप करम कीजिए, नगाह फरमा दें। अल्लाह ताला आपका हफ्ज़ कवी बना दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा ये सवाल है कि कराची बाबुल मदीना की यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया है कि शोबे तालीम के काम के हवाले से स्टूडेंट्स वग़ैरह जो हैं वो इतना आते नहीं हैं, उनको इज्तिमात वग़ैरह की दावत दें और यूनिवर्सिटी में दर्स वग़ैरह की दावत भी दें तो इतना वो इस चीज़ की तरफ आते नहीं हैं। तो ऐसा क्या रद्द अमल इख्तियार किए जाए कि इनफरादी कोशिश करने के बावजूद भी स्टूडेंट अपनी सुस्ती दिखाते हैं और इन चीज़ों में अपनी शिरकत नहीं कर पाते, तो इस बारे से रहनुमाई फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर। कुछ फ़आल होंगे, कुछ गैर फ़आल होंगे, एक्टिव बाज होते हैं, कुछ नॉन एक्टिव होते हैं, तो ये तो हर जगह होता है ऐसा। तो आपको हो सकता है मिले ऐसे ही होंगे ठंडे शाह, वरना यहाँ भी काम तो हो रहा अपनी मजलिस तालीम की, अल्हम्दुलिल्लाह काम तो करती है। बापा नियत की है कि अभी इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी में पेपर्स के बाद तकरीबन 1 माह की छुट्टियां हैं, तो इंशाल्लाह हमने नियत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जमा करके कोई 12 दिन का मदनी काफ़िला इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, तो इसके लिए भी आसानी की दुआ फरमा दीजिए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, सबसे पहले तो अर्ज़ ये है कि दीन का शहर से, ज़िला गुजरात से गुलाम मुस्तफ़ा अत्तारी आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। जी आया नू। हुज़ूर ये दुआ फरमा दीजिए कि खाली जो लेकर आए हैं, मदीना तैयबा का गम अता फरमा दीजिए, हाँ। मदीना तैयबा की ज़ियारत अता फरमा दीजिए। आमीन। हम सबको मिल जाए। आमीन। हुज़ूर अर्ज़ ये है कि एक इस्लामी भाई हज पे गए और मीना में 2 दिन लेट पहुँचे हैं, वापसी पर मुज़दलिफ़ा से भूल गए शायद, तो 10 और 11 की रमी नहीं की उन्होंने। तो इस सूरत में उन पर 2 दिन का जो है वो रमी नहीं की है, तो 2 दम वाजिब होंगे या एक? चाहे 1 दिन की रमी रह गई, चाहे 3 दिन की रह गई, दम एक है। उस पर 1 दिन की रमी रह गई, दम दे दिया, अब फिर दोबारा रमी रह गई तो दूसरा दम है। तो इनका जो केस है कि 2 दिन की बेचारे की रमी रह गई तो 1 दम हुआ। इसी तरह जब तवाफ़ काबा करते हैं, शुमारा होता है 7 दानों पर मुश्तमिल ना, तो उस तवाफ़ ज़ियारा तो मिल गया उनको। जी तवाफ़ ज़ियारा अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ अदा हो गया। जी, आम जो नफली तवाफ़ करते हैं या वैसे जो उम्रे का तवाफ़ करते हैं, उसमें जो शुमारा होता है वो 7 दानों का, उसमें बाज़ औक़ात तो जो रिंग होता है वो लोहे का होता है, यानी मेटल का होता है, तो वो उंगली पर पहन कर तवाफ़ करते हैं। हरज नहीं है इसमें, हरज नहीं है। हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं कि नए इस्लामी भाई मदनी माहौल में कैसे अटैच करें और नए नए इस्लामी भाइयों को मदनी माहौल में कैसे लाया जाएगा? अब तक कैसे लाते रहे आप? तजर्बा होगा आपको, कुछ इरशाद फरमा दें, मैं भी सीख जाऊं। हुज़ूर सीखने के लिए आए हैं आपकी बारगाह में। कब से मदनी माहौल में? तकरीबन हुज़ूर 22 साल हो गए। 22 साल हुए, अभी तक नहीं सीखा, इसकी सजा क्या? ज़रा कि वो सामने वाले की नफ्सियात के मुताबिक ही उसको इनफरादी कोशिश करनी है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज़ करना था कि हम घर से जब निकलते हैं ना, दुकान पे या काम के लिए आते हैं, तो हमारे शहरों में ये रिवाज है कि छतों पे पानी की टैंकियाँ हैं, तो बाज़ औक़ात वो टैंकी ओवरफ्लो हो जाए तो पानी गिरता भी है। ये हम जब गुज़रते हैं तो अक्सर कतरे गिरते हैं कपड़ों पे, तो सोचते यही है कि ये टैंकी का पानी है। तो बाज़ औक़ात छत पे कपड़े भी धोए जा रहे होते हैं या ऐसा भी, तो हमें पता नहीं होता ये पानी कौन सा है। तो जब हम जाते हैं तो अगर ज़ोहर असर की नमाज आ जाए दुकान पे तो हम पढ़ सकते हैं जी। पाक के जब तक नापाकी का इल्म ना हो, यकीनी मालूमात ना हो, जब तक कोई चीज़ नापाक नहीं होती, वहम नहीं करना चाहिए। अब हमारी लसानी डिवीज़न के लिए भी दुआ फरमाए, हमारी सदीकी कबीना के लिए भी, कि 12 मदनी कामों की धूम मच जाए। आमीन। क्या जिम्मेदारी है आपकी? बाबा मेरे पास फैज़ान लसानी डिवीज़न की खिदमत है जी। फैज़ान लसानी डिवीज़न। अच्छा, माशाअल्लाह। बाबा मुझे ये सादत अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अता फरमाई है कि जब आप 95 में ज़ियाकोट तशरीफ़ लाए थे तो मुझे अल्लाह ने जुबैर, जी अरे बूढ़े हो गए, अब तो बुजुर्गी आ गई है। मैंने असल गौर नहीं किया था, जुबैर दीवाना है। हाँ दीवाना है, चल मदीना हुआ था। अल्लाह। हाजी जुबैर माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारे पापा जान रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं माजरत दे नाल पापा जान कह रहा कि कोई गलती कोताही है, मेरे को पहला कोई अल्फाज कोई तो दिल कोई दुखाई हो जाए तो माजरत हम नवे सिरों मेहरबानी फरमायो, मेरी गल गौर नाल पापा जान सुन लो। मैं 1992 का जनाब अली तुहाडा आशिक दीवाना परवाना तुहाडा बचांगा। 1992 तो बेलौंस तुहाडे नां दे उत्ते विकिया होयागा, जिवें कहंदे मेरे इस्लामी भाई खनगाह शरीफ दे रहण वाले, मैं उवें कुर्बानी देण नूं तैयार हांगा, दिंदा पिया अल्हम्दुलिल्लाह। और तुसीं जनाब अली मैनूं कहंदे तेरा नंबर ही नहीं आया, तुहाडी मर्ज़ी है मियां साहब, बड़े पापा जान। मैं जिंदगी से पहले दफा पापा जी थोड़े को आया, जिंदगी से पहले दफा मैं ना कदे मजलिस से कोई गल की ना कोई किस्म की किसी गल नहीं की हैगी, पहली दफा परसों तो गल हो जाएगी। अल्लाह जाने कोई गलत अल्फाज निकल गया, मैं माफ़ी मंगदा पिया, मैंने अल्लाह की रज़ा दी खातिर माफ़ कर दियो, तुम मेरे पीरो मुर्शिद होगे। कोई नाराजगी की बात ही नहीं है। मैं मेरी रुका हाथ बन के मैंने दिलों दुआ कर छोड़ो, मैं मदीने की इजाजत कर लवा, तो उस मदीने की मैंने इजाजत करवा दो खुदा वास्ते। मैं तेरे को हाथ बन के खैत मंगना आया करूँगा, मैंने खैत अता फरमा दो, दिलों दुआ कर दो। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम जान दो, तुसी रहबर हो, कल क़यामत वाले दिन भी तुसी मेरे रहबर होंगे, खुदा वास्ते माफी मांग रहा। मैं कहाँ नाराज हूँ, मेरे आका मैं खुदा वास्ते माफी मांगदा पिया, माफ किया। अब इसी में खुश होते हैं। एक मुट्ठी हजूर तुम्हारे नाल वादा हो गया, वादा हो गया। अब तक जितनी बार कटी घटाई ओदी माफी तोहफी, मैं माफी तुहाडे कोलों माफी मंगदा, खुदा कोलों माफी मंगदा पिया। कदी भी लोड़ नहीं पैदी मैनू दर दर ते जावण दी, कदी भी लोड़ नहीं पैदी मैनू दर दर ते जावण दी, मैं लज पाला दमंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे, मैं लज पाला दा मंगता मेरे पल्ले, दुआ मंगिया करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे, दुआ मंगिया
مرشد نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جا دے او جو دیوی مرے رہندے جنا دے پیر رس جا دے او جو دیوی مرے رہندے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.